Hello. Good morning, everyone. I'm so sorry for the delaying. Actually, there was some technical issue, so we got just delay 5 minutes. So before starting this session, I would like to introduce myself. My name is Israel Suhail Khan, and working as a technical and derivative analyst. And I'm working on charts from last 12 to 13 years, right? And I'm continuously watching charts since 2010. And I'm very passionate about reading the charts. So in today's session, we talk about the charts, right? How we can use in investments and trading, how we can improve our trading cycle with the use of technicals, right? So as name suggests, how to start our investing journey with using of technicals. So in today's session, we'll discuss about the technicals, about the basic things of the technicals, and about our report basically which we prepares through the research teams, right? So कि हम research में कौन-कौन सी reports बनाते हैं, कब-कब deliver करते हैं. That's way you can use these reports on a very time basis, right? So first of all, very welcome to in our elite family. Basically, because this seminars only for those guys who just joined elite, right? So अभी हाल फिलहाल में ही elites में जिनके accounts खुले हैं, उन्हें elites के बारे में basically कि हम कब कौन हमारी research कैसे काम करती है. हमारी रिसर्च कैसे काम करती है एंड कौन सी रिपोर्ट्स हम कैसे डिलीवर करते हैं. Just please hold down for 2 minutes. I think again there is some technical issues. So in today's session, it's purely based on the technicals as well as research reports, right? At what time, what type of reports we deliver to our clients, right? So let's start about the session. So we start from the technical because it's a purely technical based seminar, right? So let's start for the technicals. Everybody's know what is technical, right? So when we define to the technicals, so technical analysis is a study of supply and demand, right? So जब हम technicals use करते हैं ना, right? So we get to know कि stock में कहाँ पर किस लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, किस लेवल पे ब्रेकआउट्स है, किस लेवल पे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए और किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए. देखिए टेक्निकल्स हमें ना एक बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया देता है कि हमें किस लेवल पे किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए देखना चाहिए और किसी भी स्टॉक्स को एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए, राइट? सो व्हेन वी डिफाइन कि व्हाट इज टेक्निकल, टेक्निकल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखिए टेक्निकल जैसे इसमें लिखा है, टेक्निकल इज अ स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट्स, राइट? एंड टू predict the future activity through some past data and volumes, right? So this is very important कि past behavior से कि stock ने जो past behavior में जो भी किया हुआ है, जैसा भी एक picturization stock ने बनाया हुआ है, उस behavior के according future को predict करना, that is called a technical analysis, right? So the approach of technical analysis is to buying any good stock at lower level and to sell the stocks on a higher level. Either it's trading, either it's investment. See, again, nobody can predict the top, even nobody can predict the bottoms, right? But technicals के use से देखिए आप हम लोग क्या है, we can judge the stock कि this could be a bottom and this could be a top, right? Yes, 100% we cannot predict, but
अगर हमारी probability ratio with the use of technical is about 80%, so that is more enough, right? So through the technical we can understand कि स्टॉक्स को हम किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और किस लेवल पे हमें सेल करना चाहिए, राइट? ये एक प्रोबेबिलिटी रेशियो है, बट अगर हम टेक्निकल यूज करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस होने की more than 70 to 80% हो जाती है, right? So this is about the technical, जो बहुत बेसिक सी चीज है। और सी देखिए, लेकिन जब हम चीज बात कर रहे हैं कि why we need a technical analysis, so according to me, see, we need to understand कि जिस मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जा रहे हैं या जिस मार्केट में हम अपना हार्ड मनी पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं, उस मार्केट का ट्रेंड क्या है, राइट? सी कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, पैसा लगाना इस लेवल पे सेफ है या नहीं है, या मार्केट डाउन साइड में है, हमें वेट करना चाहिए। एक ब्रॉडर पिक्चर हमें टेक्निकल्स के थ्रू पता चल जाता है, राइट? सो technical is very important part, right? When you are dealing into equity markets, right? देखिए दो पार्ट्स होते हैं, one is fundamental, second is technical, right? When you know about the कि was this company is fundamentally very strong company, right? But technical will tell you was कि at what time you need to buy this stock, at what time you need to sell this stock. So technical is very important, right? So this is technicals के through what is the trend of the markets, ये खाली आपको technicals ही बताता है। देखिए sometimes you see कि मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट अगेन स्टॉक्स कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहे होते हैं उस बिहेवियर में, उस सेंस में, राइट? तो आपको ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ये डायरेक्शन आपको टेक्निकल से ही पता चलेगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है। तो जब हम टेक्निकल में एक बहुत बेसिक चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड, राइट? So when we talk about the technical, there are two type of trends. One is a uptrend and second is a downtrend. तो देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि this is example of uptrend, right? When stock is continuously making higher top higher bottom formation. देखिए टेक्निकल्स में जब हम बात करते हैं ना, तो जब हम अपट्रेंड की बात करते हैं तो अपट्रेंड में दो चीजें होती हैं। वन इज लाइक कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या स्टॉक नीचे जा रहा है, दो ही बात हो सकती है। तीसरी चीज, या स्टॉक या मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। तो ये चीज हमें चार्ट से पता चलती है। व्हेन स्टॉक, जब हम अपट्रेंड की डेफिनेशन की बात करते हैं कि अपट्रेंड किसे कहते हैं, so this is a simple example of uptrend, कि when stock making higher top higher bottom formation, right? ये देखिए, ये पिक्चर जो दिख रही है आपको, ये continuously ये हायर हाइज बना रही है, देन लो बनाती है, देन अगेन हायर हाइज। जब continuously इसके जो हायर हाइज बनते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। तो जब भी हम किसी स्टॉक्स को देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट का बेंचमार्क क्या कह रहा है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है। देखिए क्योंकि निफ्टी ऊपर है तो सब कुछ पॉजिटिव साइड पे ही चलता है, राइट? तो सबसे साथ में कि निफ्टी का अप ट्रेंड है, तो उसके साथ साथ अप ट्रेंड वाले और स्टॉक कौन से हैं, तो वो सबसे पहले हमें स्टॉक्स में देखना है कि स्टॉक में किन किन स्टॉक्स में अप ट्रेंड चल रहा है। और अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताई कि व्हेन स्टॉक इज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, आइदर डेली चार्ट आइदर ऑन वीकली चार्ट। मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। सी देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, राइट? जब ये रिलायंस, अभी देखिए रिलायंस में आप कॉन्टिन्यूसली देखिए स्टॉक, ये देखिए कॉन्टिन्यूस इज मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। ये स्टॉक का प्राइस कहीं, स्टॉक का देखिए, ये स्टॉक 1100-1200 रुपए के रेट से जब रिवर्स हुआ स्टॉक, देखिए उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्म, कहीं पर भी स्टॉक ने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं किया है, राइट? So this is a very clear example, boss. This is a uptrend. We should look to buy this stock at every dips, right? देखिए मैं आपको सिर्फ आज टेक्निकल्स इज ए वेरी डीप एनालिसिस, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें ही समझाऊंगा जिससे कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट टू जज, राइट? कि बॉस स्टॉक में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है तो वी शुड अवॉइड, अगर अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो हमें डिप पे हमेशा बाय करने के लिए देखना चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, ये बहुत
क्लियर एग्जांपल है अप ट्रेंड का कि पीछे अब स्टॉक ने देखा होगा कि आपने 1200-1300 रुपए से स्टॉक 2200-2300 रुपए तक होके आया है, राइट। एज ऑफ नाउ स्टॉक इन ए कंसोलिडेशन मोड, बट जो ये 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 रुपए होके आया है, उस लेवल पे भी एवरी लेवल इज शोइंग कि दिस इज ए बाय स्टॉक। बिकॉज जनरल मार्केट में होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि ट्रेडर्स होते हैं, स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस सेंस में आपको ये अपना दिमाग लगाना है कि जब तक स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, जब तक आपको बेचने की जरूरत नहीं है स्टॉक को, राइट। यू शुड कंटिन्यू विद दिस स्टॉक एंड होल्ड इट। ये बहुत क्लियर पिक्चराइजेशन एंड क्लियर पैटर्न बताता है कि नहीं बस हमें स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, राइट। देखिए ट्रेंड कब चेंज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें स्टॉक से एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए, किस टाइम हमें स्टॉक से निकलने की कोशिश करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ अंटिल अनलेस मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है तो हमें अप ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, राइट। So basically, this is a definition of uptrend, right? Now we discuss about the downtrend कि downtrend क्या होता है। जैसे हमने uptrend में देखा था ना कि stock continuously higher top higher bottom formation के साथ काम करता है, तो downtrend just उसका opposite, right? कि when stock is continuously making lower top lower bottom formation। देखिए इसमें देखिए stock continuously ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और जो previous low है उसे break कर देता है, right? उसे ब्रेक कर देता है, एंड जो प्रीवियस हाई है उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर एक स्टॉक में एग्जांपल्स के लिए कोई भी 100 रुपए का स्टॉक है, गिर के 90 रुपए आया, एंड देन अगेन वो 90 रुपए से ऊपर चलना शुरू हुआ, वो 95 तक आया, बट द प्रीवियस रेजिस्टेंस इज 100 रुपीज, बट स्टॉक ने 100 रुपीज क्रॉस नहीं किया, और 95 से स्टॉक ने फिर गिरना शुरू किया, और प्रीवियस जो लो था 90 रुपए उसे भी ब्रेक कर दिया, राइट, और 85 चला गया। तो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ डाउन ट्रेंड कि भाई स्टॉक अपना प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस कर पा रहा, और स्टॉक कॉन्टिन्यूसली लोअर बॉटम लोअर टॉप के साथ फॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है। सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड, राइट। सो अभी लेट्स सी विद द एग्जांपल्स कि एग्जांपल्स में हम कौन सा स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ए जी लिमिटेड, राइट। दिस इज ए डेली चार्ट, जो कि स्टॉक को आप देखिए कॉन्टिन्यूसली स्टॉक 300-400 रुपए से कॉन्टिन्यूसली गिरना शुरू कर रहा है। ये देखिए कहीं पर भी स्टॉक ने प्रीवियस हाई, देखिए यहाँ से गिरने के बाद ये स्टॉक ने पुल बैक लिया, बट ये प्रीवियस हाई था, इसे क्रॉस नहीं किया, देन अगेन यहाँ से एक फॉल आया, अगेन स्टॉक में रिवर्सल आया, बट प्रीवियस हाई वाज दिस वन, right? Previous was high was this one, but stock ने cross नहीं किया, and again it's fall down, right? And again it goes up, and previous high didn't cross, then again, so stock का क्या हो रहा है कि stock continuous अपना जो बॉटम है वो नया हाई बॉटम बनाता जा रहा है, जैसे यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। So this is a very clear example, boss. We should avoid this stock, right? At least हमने अगर इसे कुछ करना नहीं है स्टॉक को, हमें जब तक स्टॉक का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वी शुड नॉट बाय दिस स्टॉक, राइट। सो हमें ये एक चार्ट्स के थ्रू हमें विजुअलाइजेशन हो जाता है कि एट दिस लेवल वी शुड बी बाय और वी शुड नॉट बाय। तो दिस गिव टेक्निकल विल गिव यू द इंडिकेशन, नो दिस इज नॉट ए बाय स्टॉक, राइट, because stock is clearly trading with a downtrend, right? So this is an example of downtrend. Third one is when we discuss about the trend analysis. देखिए मैंने पहले भी शुरू में आपको बोला था कि there are three type of trends. One is a uptrend, second is a downtrend, third one is a sideways. तो sideways जब हम बोलते हैं कि जब एक स्टॉक कॉन्टिन्यूसली एक रेंज में रहता है, राइट, एक रेंज बना के रखता है। सपोज एक एग्जांपल 100 रुपए का स्टॉक है, ऊपर 110 रुपए जाता है, नीचे 90 रुपए जाता है, और अगेन 110 के लेवल से उसमें हमेशा सेलिंग आ जाती है, एंड देन व्हेन इट्स कम्स टू द 90 लेवल एंड अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कंसोलिडेशन स्टॉक, राइट। तो कंसोलिडेशन स्टॉक जब कर रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड ऑलवेज try to buy at lower level and try to sell at exit at higher level, right? So this is very important part कि we should
we should avoid this range. We should avoid this range. So let's take example कि sideways market में कैसे होता है. देखिए मैंने उससे पहले देखिए रिलायंस में अप ट्रेंड शुरू होने से पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया है रिलायंस इंडस्ट्री का ही, राइट. रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक एग्जांपल दिया है मैंने, राइट. कि उसमें व्हेन स्टॉक इज continuously trading with see this is a Reliance industry. जब रिलायंस 2008 से लेके 2014 तक it was continuous trading in a range. देखिए this range was hardly downside 700, upper side 1100. स्टॉक ने 2008 से लेके 2014 तक इस रेंज में ट्रेड किया है, राइट. सो आप यू सी कि एक स्टॉक जब तक वो कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेक नहीं करता है, जब तक स्टॉक बेसिकली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, जब तक वी शुड अवॉइड दिस स्टॉक, वो चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, राइट. आइदर जब हम ट्रेडिंग के लिए भी ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ले रहे हैं, एक बार हमें या तो हम लोअर लेवल पे लेने का प्लान करें या तो एटलीस्ट वी शुड बाय दिस स्टॉक एट ब्रेकआउट्स लेवल, राइट. तो ये एग्जांपल है साइडवेज मार्केट का. देखिए ये जो ये एरिया है, इस एरिया और इस एरिया में आप ये दिस इज अ वीकली चार्ट, इस एरिया और इस एरिया में 5 साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है, राइट. 4 साल में किसी ने नोबडीज मेक मनी इन रिलायंस इंडस्ट्री बिकॉज स्टॉक वाज कंटिन्यूअस ट्रेडिंग इन ए रेंज, राइट. और जिस दिन स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया, लोगों ने अपना पैसा 2 साल के अंदर डबल कर दिया. 2013-14 से स्टॉक चलना शुरू हुआ एंड स्टॉक डबल ट्रिपल आफ्टर बोनस एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग अराउंड 2000 लेवल, राइट. उसके बाद बोनस भी आया एंड सारी चीजें आई. सो बेसिकली दिस इज अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन. और देखिए मैंने उसके साथ साथ ही आपको दिखाया हुआ है कि कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद स्टॉक में बाय करना है और उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम भी किस तरीके से बन रहा है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है साइडवेज मार्केट, क्या होता है अप ट्रेंड मार्केट, क्या होता है डाउन ट्रेंड मार्केट. हमें उस बेसिकली उस चीज को देखते हुए चार्ट्स के थ्रू हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए. सो सॉरी वन थिंग्स मोर, बेसिकली कुछ लोगों के क्वेश्चंस अभी से आने स्टार्ट हो गए हैं. So I would suggest you कि we'll have another session for Q&A session after the after this seminar, right? Because हम लास्ट में 10-15 मिनट का ये सेशन रखेंगे. अगर आपका किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी स्टॉक को लेके कोई क्वेरी है या किसी भी चीज को लेके कोई आपका क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम बीच में क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक वो काफी डिले हो जाएगा. तो हम लोग लास्ट में आफ्टर फॉर 10 और 15 मिनट्स के लिए वी हैव ए Q&A सेशन. तो मैं आपके उनका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस सेशन के बाद ही दूंगा, राइट. आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखिए. Definitely I'll give the answer, right, but we'll start this session after this seminar, right. So I hope you understand कि uptrend क्या है, downtrend क्या है and sideways market क्या है. And this is very important part in technicals. और देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. आप इसी बेसिक चीज को यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स, अपना इन्वेस्टमेंट स्किल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट. एंड तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि क्या है अप ट्रेंड, क्या है डाउन ट्रेंड. Now our second point is to understand support and resistance. देखिए उसी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड्स के थ्रू हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझ लें, बिकॉज क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही डिफाइन करता है कि अगर सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक कहां तक जा सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो स्टॉक कहां तक जा सकता है. तो आई थिंक देखिए बहुत बेसिक चीज है मेरे ख्याल से. एवरीबडी इज नो कि व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस. ये मैंने डेफिनेशन साथ में लिख रखी है कि एक स्टॉक जब अपर लेवल को ब्रेक करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कि पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. एंड इन पर्टिकुलर लेवल ऑन ए लोअर साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, राइट.
जब कोई स्टॉक में हमेशा एक लोअर लेवल पे डिमांड आ जाती है, लोअर लेवल पे उसमें बाइंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट लेवल। और अपर साइड में अगर वो क्रॉस नहीं करता, दैट इज अ रेजिस्टेंस। सी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, राइट। सी देखिए, ये ऑरो फार्मा का डेली चार्ट्स है, राइट। सो यहाँ देखिए कितनी क्लियर पिक्चर है इसमें कि जब स्टॉक एक मतलब ट्रेंड में चल रहा है, आइदर इट्स अप ट्रेंड, देखिए ये दोनों साइड का है। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट्स दिया एंड ब्रेकआउट्स के बाद स्टॉक में ये देखिए ये जो ये पैटर्न बनाया हुआ था इसने, इसका टारगेट यहाँ आसपास हो गया, राइट। फिर अगेन ये दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। जब स्टॉक इस रेंज में घुस गया, फिर दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट हो गई, राइट। कि ये देखिए ये इसके टॉप बनते जा रहे हैं, ये टॉप है, ये टॉप है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये टॉप बना, ये हाई बना, ये हाई, बट ये पर्टिकुलर हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लेवल। When we comes to the support level, देखिए ये सपोर्ट है, अगेन सेम लो वो बनाता जा रहा है स्टॉक। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, राइट। और जिस दिन स्टॉक ने ये सपोर्ट लेवल तोड़ा, स्टॉक सीधा फॉल। कि स्टॉक में मतलब आप देखिए गलती से किसी दिन अगर आपको पता चले कि यहाँ स्टॉक आ गया, अब ये ब्रेक हो जाएगा नीचे, और आपने बेच दिया, वहां से देखिए स्टॉक कैसे भाग गया। सो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक हमें कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, और जब तक कोई स्टॉक हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, राइट। सो थ्रू द चार्ट्स यू देखिए, आप माइंड में तो नहीं लेके चल सकते ना पिक्चर्स को कि भाई ये स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल है, ये आपको चार्ट भी बताएगा। ये इसका प्राइस बिहेवियर जो पास्ट बिहेवियर बना चुका है ये स्टॉक, वो आपको चार्ट्स के थ्रू ही पता चलेगा, राइट। सो यू गेट टू नो कि बॉस देखिए पीछे ये आया था इस लेवल पे, ये 700 रुपए का लेवल है, स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर नीचे 700 रुपए तक आया, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई पीछे ये 700 टच कर चुका है। Then again, so this level is I would look for a buy, right? Because until unless ये level break नहीं कर रहा है, ठीक है, lower level पे आ रहा है, I try to buy this stock. Sorry. So again stock is going up from the support level, right? फिर again stocks corrected towards the support level. देखिए इस बार भी यहाँ पर इसने ये सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, तो अगेन आई वुड लव टू बाय दिस स्टॉक, राइट। बिकॉज स्टॉक ने ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल हम पीछे देख चुके हैं कि ये सपोर्ट लेवल ये स्टॉक 2 या 3 बार बना चुका है, अंडरस्टूड। देन अगेन स्टॉक ने ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया और यहाँ से दोबारा स्टॉक 200 पॉइंट्स का जंप दिखा दिया, राइट। 100-200 पॉइंट्स का जंप दिखा दिया। सो यार इफ एनी स्टॉक जो 700 रुपए का स्टॉक है, हमें खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू पता चल जाए कि बॉस कि स्टॉक दोबारा से 800 850 जा सकता है, मुझे इसमें 15-20% का रिटर्न मिल सकता है, अनटिल अनलेस ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर, मुझे नहीं पता आपने यहाँ खरीदा या यहाँ खरीदा या यहाँ खरीदा। सो आई विल होल्ड दिस स्टॉक अनटिल अनलेस सपोर्ट डजंट ब्रेक, राइट। सो दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर कि ये स्टॉक सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, और देन देखिए अगेन ये स्टॉक ऊपर गया, बट उसके बाद जो करेक्शन लिया, देखिए मैं देखूंगा कि क्या स्टॉक यहाँ सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। अगेन अगर ठीक है, मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ बाय भी कर लिया है इस लेवल पे जहां इसने, लेकिन जिस दिन इसने ये सपोर्ट तोड़ा, आई वुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, आई वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, राइट। सो because this has been broken the support, right? So again देखिए सपोर्ट टूटने के बाद स्टॉक देखिए कितना करेक्शन, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ द टेक्निकल्स, लेकिन इसके थ्रू आप इस बेसिक पार्ट्स को यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट द स्टॉक के बॉस स्टॉक का बिहेवियर क्या कह रहा है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है या स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है, right? So this is a second example of HDFC Bank. देखिए this is a trend line support कि स्टॉक हमेशा एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, हमेशा लोअर। देखिए जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को मैच करते हैं यहाँ से मिला के यहाँ से, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होता है, बेसिकली ट्रेंड लाइन इज ए वेरी एडजस्टेबल लाइन, राइट। इसे हम हर लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम हमेशा इसे
टॉप से टॉप को मिलाते हैं, बॉटम से बॉटम को मिलाते हैं, राइट। तो अब जब मैं लोअर बॉटम से ये बॉटम मिलाता हूँ, यहाँ पर मेरे को सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर मेरे को सपोर्ट देखने को मिला। जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, आई वुड ट्राई टू बाय। लेकिन जिस दिन इसने ये देखिए ये सपोर्ट ब्रेक किया स्टॉक ने, ये अभी जो करंट फॉल आया था मार्च के टाइम का, ये तब का चार्ट है, और आई ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। एटलीस्ट मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेड है या मेरी अगर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर मेरा 1-2 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आई वुड एग्जिट, राइट। मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल ऑफ सपोर्ट, कि सपोर्ट कैसे एक्ट करता है, सपोर्ट का बिहेवियर कैसे पता चलता है। और देखिए मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात कह रहा हूँ, ये चीजें आप अपने माइंड में नहीं रख सकते कि किस स्टॉक का किस सपोर्ट है। we have to use charts, we have to see the previous behavior, right। उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करना होगा कि स्टॉक का सपोर्ट कहाँ है, स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। मतलब दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। अभी हमने सपोर्ट की बात करी, नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। देखिए स्टॉक, दिस इज एग्जांपल ऑफ अदानी पोर्ट, ये अदानी पोर्ट का चार्ट है, दिस इज अ डेली चार्ट। स्टॉक देखिए कॉन्टिन्यूसली ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। अगेन जब तक ये स्टॉक, देखिए ये पिछले पूरे 1.5 साल में स्टॉक ने एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं किया, राइट। एंड व्हेन दिस ब्रोकन दिस रेजिस्टेंस लेवल आप समझ रहे हैं ना, कि जब स्टॉक एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। बट अगर वो लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए वो ब्रेकआउट्स बन जाता है। सो दिस इज ए ब्रेकआउट लेवल, राइट। सो आई वुड लव टू बाय दिस स्टॉक अबव द ब्रेकआउट। देखिए ये एरिया है जहां पर इसका ब्रेकआउट्स बना है। दिस इज कॉल्ड सम पैटर्न ऑल्सो, बट हम पैटर्न्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रेकआउट्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस एरिया वाज a resistance earlier, but when the stock broken this resistance, ये देखिए the massive move, right, this move is almost 30% within a month। अब ये देखिए कैंडल्स गिन लीजिए, कितने दिन की कैंडल्स हैं, उतने दिन का ये मूव है। सो टेक्निकल्स विल टेल यू द बेस्ट टाइम टू एंट्री इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स, राइट। सो आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार अगर सपोज आपने यहाँ स्टॉक खरीद लिया या यहाँ खरीद लिया, तो एटलीस्ट ठीक है, अब चल गया आपका स्टॉक। लेकिन वो एक जो टाइम करेक्शन लिया स्टॉक ने, या आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, राइट। सो दिस टाइम आपको ये क्लियर है कि बॉस दिस एरिया इज ए रेजिस्टेंस, एंड व्हेन टू बाय इट विल टेल यू ओनली टेक्निकल्स, राइट। सो दिस इज ए रेजिस्टेंस लेवल। जब भी रेजिस्टेंस मेरा ब्रेक होता है, आई वुड लव टू बाय दिस स्टॉक। सेकंड, देखिए सेकंड एग्जांपल इस गोदरेज प्रॉपर्टी का भी, अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल्स है। देखिए ये आप ये कंसोलिडेशन रेंज देखिए स्टॉक की, ये देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन करता रहा। आपको देखिए हर चार्ट में कंसोलिडेशन मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, ब्रेकआउट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए ये एरिया, ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है, ये देखिए नीचे वाला एरिया। ऑल्दो मैंने एग्जांपल रेजिस्टेंस के लिए लिया है, बट मैं आपको तीनों चीजें इसी में दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये सपोर्ट एरिया है, आप इधर लाइन खींचेंगे तो आपको पता है कि बॉस ये दिस इज ए लोअर लेवल एंड दिस इज ए हायर लेवल अगेन। लेकिन व्हेन स्टॉक हैज ब्रोकन दिस एरिया, सी दिस, दो मतलब हार्डली 10 दिन के अंदर स्टॉक देखिए, तो स्टॉक ने 10 से 15% का रिटर्न दे दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स, बट एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए हम 1 से 2 एग्जांपल्स तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कैसे सपोर्ट्स को डिफाइन करेंगे, कैसे हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट। सो now we move towards the next topic. See, when to buy and when to sell, that is very important part, right? ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा कि when to buy and when to sell, right? I hope कि हम लोग इस चार्ट्स को ये प्रेडिक्ट करना सबसे टफ काम है स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, राइट, कि आपकी बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, बेस्ट टाइमिंग हम कब शो करते हैं, राइट, और बेस्ट टाइमिंग कैसे देखते हैं।
excuse me. Right. So next topic is when to buy, when to sell, right? So जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया, this was the also example कि when to buy और when to sell, understood? जैसे हमने कहा ना कि एक बार जब स्टॉक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, one we can buy, understood, right? और स्टॉक वो देखिए दिस वाज ओनली रेजिस्टेंस, लेकिन हमें सिर्फ ना एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके देखना और उसके बाद बाय करना, सिर्फ उससे ही काम नहीं चलता, हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड पैटर्न आल्सो। देखिए पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द टेक्निकल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पैटर्न्स। पैटर्न्स बोलते हैं पिक्चराइजेशन को, कि किस तरीके का पिक्चर स्टॉक में बना रखा है। देखिए मैंने कुछ पैटर्न्स, देखिए देयर आर नंबर और टाइम ऑफ पैटर्न्स, राइट? बहुत सारे हैं, 25, 30, 35, 40, राइट? पैटर्न्स है, बट वी कैन नॉट डिस्कस इन 45 मिनट सेशन कि हम सारे पैटर्न्स डिस्कस कर सकते हैं। बट वो पैटर्न्स जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है मार्केट के अंदर, सो वो पैटर्न्स हम कुछ 3-4 पैटर्न्स यूज करेंगे। देखिए बहुत बेसिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने 4 पैटर्न्स लिखे हुए हैं। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम। सो दिस इज वेरी बेसिक पैटर्न्स, राइट? जो सबने सुने होंगे। और आई वुड से कि आप लोग ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्ट की है अपनी मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह, तो आई वुड से कि इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द फ्यू थिंग्स। डेफिनेटली हम और चीजें इन फर्दर सेशन में डिस्कस करेंगे, बट समहाउ आज के लिए अभी हम ये 4 पैटर्न्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी बेसिक पैटर्न्स, बट आप इस बेसिक पैटर्न्स पे भी काम करके यू कैन मेक मनी, राइट? अगर इस तरीके का कुछ पिक्चराइजेशन, इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट आपको दिखता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, राइट? सो let's start from with the pattern formation. So this is called double top. देखिए double top is a very bearish pattern, सबने सुना होगा, सब आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो बट उसकी बेसिक चीजें कैसे समझनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डबल टॉप फॉर्मेशन होता क्या है, क्या कब इसका कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सो दिस इज ए डबल टॉप। ये एम शेप का होता है, जैसे एम बना होता है ना, उसी तरीके से इसमें 2 टॉप्स टाइप होते हैं, राइट? वो टॉप बनते हैं। एंड देखिए कभी भी ना, जैसे आप बुकिश लैंग्वेज में जाओगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, या मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको एम पैटर्न, हमेशा ना कभी भी आपको परफेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी, राइट? बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल मार्केट, गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? कि इतना क्लियर पिक्चर की वो डबल टॉप एम टाइप का बन गया और बहुत क्लियर इंडिकेशन आ गया कि नहीं भैया अब तो यहाँ से सेल है स्टॉक, ये बेयरिश पैटर्न है। नो, मतलब आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई डबल टॉप के साथ और भी चीजें क्या क्या देखनी है। जैसे मैंने आपको देखा कि भाई डबल टॉप के साथ आपको नेकलाइन सपोर्ट टूट रहा है नहीं टूट रहा, वो भी देखना है। तो सारी चीजें आपको अभी हम एग्जांपल्स में क्लियर कर देंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल टॉप होता क्या है? इट्स अ बेयरिश पैटर्न, राइट? इसमें 2 टॉप बन जाते हैं अप्रोक्सीमेट एम टाइप ऑफ, जैसे एम टाइप का अल्फाबेट होता है उस तरीके का। और ये जैसे हमने टॉप दिखा रखे हैं 2, ये इस तरीके के टॉप, दिस इज फर्स्ट टॉप, दिस इज सेकंड टॉप। तो बेसिकली इस तरीके के टॉप, ये देखिए इसमें पिक्चर में तो बहुत क्लियर बिल्कुल बराबर है, समटाइम्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट वो भी डबल टॉप फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, राइट? सो दिस इज ए डबल टॉप फॉर्मेशन। अब हम एग्जांपल्स में देखिए, ये कैनरा बैंक का लाइव एग्जांपल्स है। आप ये, दिस इज ए डेली चार्ट, आप ये देखिए कि ये फॉर्मेशन, ये देखिए टॉप पे, देखिए सबसे पहले डबल टॉप बनता कहाँ है? डबल टॉप हमेशा बुल मार्केट में बनता है, राइट? आपको ये समझने की जरूरत है, इट्स ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, अंडरस्टैंड? इट्स ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इट्स ऑलवेज ऑकवर्ड ऑन द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, राइट? तो ये हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। और जब भी बनता है इसमें, जब इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन देखिए, एम शेप का जब भी बना, ये देखिए ये प्रॉपर ये बना हुआ है एम शेप का, अंडरस्टूड? इस तरीके का। और जब भी ये अपना इसका ब्रेकडाउन देता है, देन वी शुड सेल द स्टॉक।
एंड देखिए टारगेट बेसिकली हम टारगेट कैसे लेते हैं, अगर ये इसका टॉप 100 रुपीज का है एंड बॉटम इसका 80 रुपीज का है, सो अगर ये नेकलाइन तोड़ता है तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन अगर फिर भी हमें टारगेट्स लेके जानने हैं कि बॉस हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए स्टॉक का, तो 100 रुपए ऊपर 80 रुपए नीचे, मतलब 20 रुपए का ब्रेकडाउन है, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 रुपए, तो ये 60 रुपए के आसपास स्टॉक को बाय करेंगे कहीं पर, राइट। देखिए इफ यू आर ए इन्वेस्टर, तो इफ एनी स्टॉक हैज डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ पैटर्न्स and if you are expecting ki stock can move down almost 20% from the upper level, so why we should not exit from the stock, right? At least अगर 10% 20% आपको स्टॉक नीचे मिल जाता है तो अगेन आई विल बाय दिस स्टॉक, राइट। इफ यू आर ए ट्रेडर, तो ऑब्वियसली दिस इज ए वेरी गुड साइन टू सेल द स्टॉक, राइट। कि अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, दिस इज ए गुड टाइम टू सेल द स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए बेयरिश पैटर्न एंड ये हमेशा टॉप पे बनता है, और जब भी बनता है इसकी फॉर्मेशन बेयरिश होती है, और इसका टारगेट जो मैंने आपको बताया, जो रेंज का ब्रेकडाउन देता है पूरे एम शेप का, जो भी ब्रेकडाउन लेवल है वो डाउन साइड में उतना ही इसका टारगेट होता है। देखिए ये टारगेट्स आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं अगर 80 रुपए का स्टॉक 100 रुपए से गिर के 80 रुपए पे इसने डबल टॉप बना दिया है तो 2 दिन में ये 60 रुपए आ जाएगा, नहीं। इट टेक टाइम, इट्स अबाउट द कि जितने टाइम में ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है डबल टॉप का, माइट भी उतना टाइम नीचे आने में भी ले ले, राइट। बट दिस इज वेरी क्लियर कि ये आ सकता है, सो देयर इज ए ह्यूज 70-80% प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक विल कम डाउन अनटिल अनलेस ये नेकलाइन इसका दोबारा से ब्रेक नहीं कर देता है, कि स्टॉक नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो नेकलाइन इज माय स्टॉप लॉस, अंडरस्टूड। सो दिस इज ए डबल टॉप फॉर्मेशन जो कि हम लोग बेसिकली डबल टॉप फॉर्मेशन में रखते हैं, ठीक है। सेकेंड डबल बॉटम फॉर्मेशन, देखिए ये जस्ट अपोजिट ऑफ द डबल टॉप, ये बुलिश पैटर्न है, सबने एवरीबॉडीज नो अबाउट द डबल टॉप डबल बॉटम, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक पैटर्न इन द टेक्निकल, राइट। लेकिन ये बहुत बेसिक्स हैं, बट इनका बेसिकली कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है ये पैटर्न्स बनने के बाद कि आपको हमेशा स्टॉक को बाय करने के लिए देखना चाहिए इन एवरी डीप। अगर इस तरह की कोई फॉर्मेशन बन गई है, स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट के बाद ऊपर भी निकल गया है और कोई करेक्शन भी आता है, तो भी वी शुड बाय ऑन डिप्स, राइट। हमेशा स्टॉक को डिप पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो जैसे वहां डबल बॉटम, दो पीक बनते हैं ऊपर की तरफ, या ये डब्ल्यू शेप का होता है, ये दो बॉटम डाउन साइड में बनते हैं। आपको एग्जांपल्स के लिए ये मैं दिखा दूं, दिस इज अदानी पोर्ट, ये देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, देखिए, अच्छा सॉरी एक चीज और, ये हमेशा बॉटम पे बनता है, जैसे हमने डबल टॉप बोला टॉप पे बनता है, ये हमेशा बॉटम पे बनता है, अंडरस्टूड। तो ये दिस इज अ बुलिश पैटर्न, तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कि देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक के अंदर। देखिए जब मैं कह रहा था डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली स्टॉक देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन डेवलप करता जा रहा है, आपको कहीं भी इंडिकेशन नहीं दे रहा बाय करने के लिए, कहीं भी इंडिकेशन नहीं दे रहा बाय करने। देखिए यहाँ तक गया स्टॉक ने, यहाँ तक गया और यहाँ तक भी आया दोबारा। अब इस फॉर्मेशन में आप देखो क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेशन में ये देखिए ये बॉटम ये बॉटम ये बॉटम, अब देखिए यहाँ पर क्या करा स्टॉक, फिर ये देखिए इतना करेक्शन आने के बाद ऊपर गया, अगेन नीचे गया, अब यहाँ पर इसने बॉटम नहीं तोड़ा और ये पीक हाई तोड़ दिया, राइट। तो अगर ये देख के भी आपको बाय नहीं करना, देन अगेन स्टॉक केम डाउन और जो प्रीवियस लो था उसके लो तक आया और अगेन ये डब्ल्यू शेप पूरा बना दिया और डब्ल्यू शेप का ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट दे दिया, और देखिए नेक लाइन के ऊपर ये दिस स्टॉक, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, नीचे भी आया लेकिन नेक लाइन के नीचे नहीं आया, ये देखिए ये नेक लाइन, दिस इज ए नेक लाइन, राइट। ये स्टॉक कितनी बार नीचे आया, तो मैंने जैसे बोला कि अगर इस तरीके का पैटर्न डेवलप हो जाता है और जब तक नेक लाइन के नीचे नहीं आता, वी शुड बाय दिस स्टॉक। ये देखिए ऊपर गया, अगेन नीचे आया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि जब तक ये नेक लाइन के ऊपर है, नीचे भी आ रहा है, वी शुड ट्राई टू बाय दिस स्टॉक। देन अगेन देखिए यहाँ से गया, अगेन नीचे आया, बट वो नेकलाइन के नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और देख उसके बाद तो पूरा ये इसने पैसा डबल ट्रिपल कर दिया, ठीक है।
क्योंकि दिस इज ए ट्रेंड रिवर्सल साइन। अगर इस तरीके का पिक्चराइजेशन कहीं भी बॉटम में किसी स्टॉक में हो जाता है, वी शुड ऑलवेज बाय दिस स्टॉक, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है। ऐसी एक एग्जांपल हेड एंड शोल्डर है। दिस इज ऑल्सो बियरिश पैटर्न। देखिए हेड एंड शोल्डर जैसे एक हैंगिंग मैन होता है ना, लटका हुआ आदमी, उसका सर एंड उसके बाद उसके दो कंधे। तो दिस इज ए हेड, दिस इज ए हेड, दिस इज ए लेफ्ट शोल्डर, दिस इज ए राइट शोल्डर, राइट। दिस इज ए बियरिश पैटर्न। जैसे डबल टॉप एक बियरिश पैटर्न था, इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर एक बियरिश पैटर्न है, राइट। इसकी डेफिनेशन आप एक बार देख ही लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का पिक्चराइजेशन होता है। देखिए आप कहीं भी देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे या गूगल में सर्च करेंगे या कोई बुक में देखेंगे, तो इस तरीके की पिक्चराइजेशन है। तो उस तरीके का माइंड में लेके चलना पड़ेगा आपको कि इस तरीके का पैटर्न डेवलप हो। सो दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर ये नेकलाइन है इसकी। देखिए जब भी ये नेकलाइन ब्रेक करता है, वी शुड सेल द स्टॉक, राइट। दिस इज ऑल्सो ए ट्रेंड रिवर्सल साइन। जब भी ये गिरता है यहाँ से स्टॉक, तो काफी नीचे आ जाता है, राइट। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। सॉरी, मतलब आई होप मैंने शायद यस, दिस इज ए हेड एंड शोल्डर। सॉरी, ये हमने एग्जांपल इसमें डाला नहीं, शायद कहीं रह गया अभी हमारी पीपीटी में। बट समहाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज ए हेड एंड शोल्डर, राइट। इस तरीके का जब भी पिक्चर बनता है, तो हमें वी शुड सेल द स्टॉक, राइट। द नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जस्ट इसका अपोजिट साइड। देखिए ये एक तरीके से डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या हेड एंड शोल्डर टाइप इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बॉटम पे बनता है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, राइट। आपको मैं हेड एंड शोल्डर का अभी एग्जांपल दिखा दूंगा, राइट। अभी चार्ट्स पे जब हम आएंगे तो और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, राइट। सो दिस इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये हमेशा भी, ये देखिए, ये स्टॉक का ये शोल्डर है, देन ये हेड है, देन ये शोल्डर है। जस्ट आदमी को उल्टा कर दो, राइट। सो दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये आपके ना 15 मिनट, 1 घंटे के चार्ट में, डेली चार्ट में भी बहुत जगह मिलता है आपको, बहुत जगह आपको मिलेगा ये, राइट। सो जब भी हमें इस तरीके की पिक्चराइजेशन हमें दिखे, सो हमें वी शुड बाय दिस स्टॉक, वी शुड ऑलवेज बाय दिस स्टॉक। और हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या होगा? नेकलाइन, दिस एरिया, सी दिस एरिया इज आवर नेकलाइन। कि हमारा इस शोल्डर से इस शोल्डर पे हम लाइन खींचेंगे, और दिस एरिया इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि हम हमेशा बाय करने के लिए देखेंगे। और ये शोल्डर का लो इज आवर स्टॉप लॉस, ठीक है। देखिए ये पीआई इंडस्ट्री का चार्ट है अभी। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, हमने डाउन ट्रेंड का लिया नहीं, बिकॉज देयर वाज अ डाउन ट्रेंड। उसके बाद स्टॉक ने ये शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, और ये शोल्डर बनाया। मैंने आपको पहले भी बोला था, देखिए आपको, आप ये सोचें बिल्कुल जैसे ए बी सी डी लिखी होती है, उस तरीके की पिक्चर मिल जाए। सो टेक्निकल्स में इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको डॉट पिक्चर्स उस तरीके की मिल जाएंगी, right? But at least you will get a idea through the charts कि this is a kind of inverted head and shoulder, and this is my stop loss and this is my target. So inverted head and shoulder, देखिए ये एक shoulder हो गया, यहाँ बनाया, ये head बनाया, और ये again एक shoulder बनाया, और this is my neckline। देखिए जब मेरी neckline को cross किया, then I would buy this stock। और उसका टारगेट क्या है? सपोज ये बॉटम, एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूं मैं, ये बॉटम अगर आपका 100 रुपए का है, और ये टॉप इसका आपका 130 रुपीज का है, तो 130 माइनस 130, तो 130 प्लस 30, 160 रुपीज इज माई टारगेट एटलीस्ट। और 160 क्या, या 200 भी जा सकता है, बिकॉज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम इज ए ट्रेंड रिवर्सल साइन। अंडरस्टूड कि ये ट्रेंड रिवर्सल साइन होते हैं, हमेशा टारगेट्स ही नहीं, ये वहां से स्टॉक का पूरा ट्रेंड रिवर्स कर देते हैं, राइट। सो this stock is basically we use to this pattern basically we use for the buy because it's a bullish pattern, right? So I hope you understand कि head and shoulder क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है, कौन से बुलिश पैटर्न है, एक सपोर्ट
ब्रेक करता है तो हमें क्या करना चाहिए, या सपोर्ट के आसपास स्टॉक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। और ट्रेंड को कैसे डिफाइन करता है कोई स्टॉक की, ट्रेंड कैसे चल रहा है, और अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, राइट। सो दिस सेशन इज अबाउट द टेक्निकल। तो ये टेक्निकल के साथ साथ हम लोग बेसिकली हमारी रिसर्च टीम कुछ रिपोर्ट्स भी बनाती हैं, और बिकॉज यू आर न्यू टू एलीट, so we just love to tell you कि हम लोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स कब बनाते हैं, और उन रिपोर्ट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस टाइम पे वो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें क्या क्या डेटा देते हैं हम लोग, जो कि आप उस रिपोर्ट्स को इजीली गो थ्रू हो सके, राइट। सो बेसिकली दिस इज सम रिसर्च रिपोर्ट्स जो हमारी टीम के थ्रू बनाई जाती हैं। वन इज लाइक मार्केट आउटलुक, this is second report is market view, third report is market weekly market view, and event based portfolio, techno funda reports, fundamental reports। ये कुछ reports हैं basically जो हम लोग बनाते हैं, right। So I would like to see you some reports, right। देखिए डेली मार्केट आउटलुक मैं आपको दिखा दूं कि हम डेली मार्केट आउटलुक किस तरीके का बनाते हैं। आई होप इट्स विजिबल। Just a moment, it's opening this. So देखिए उसमें चार्ट, so right, so this is our market outlook basically। when we start our day we prepare this reports, right, कि हमें अपना कैसे बेसिकली कैसे दिन स्टार्ट करना है। सो दिस इज a व्यू अबाउट द मार्केट। ये देखिए निफ्टी का चार्ट हम साथ में डाल देते हैं, उसके साथ साथ हम निफ्टी का हम लोग एक व्यू दे देते हैं, राइट, कि निफ्टी हमें फर्दर क्या लग रहा है चार्ट्स के थ्रू या पैटर्न्स के थ्रू। हम लोग भी वही बेसिक चार्ट्स और पैटर्न्स ही फॉलो करते हैं, राइट, और उसमें हमें एक्यूरेसी 70-80% मिल जाती है। तो आई थिंक everybody will be happy if you are getting a 70-80% एक्यूरेसी, राइट। अगर हमने 10 चीजों में ट्रेड किया है, अगर उसमें से मेरे 7-8 ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, तो आई होप कि सब लोग ही हैप्पी रहेंगे उस ट्रेड से, राइट। तो दिस रिपोर्ट इज अबाउट द कि आपका मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट का व्यू क्या कह रहा है। ये एक निफ्टी का व्यू चार्ट डाला हुआ है हमने, उसके साथ साथ ये निफ्टी का व्यू लिखा हुआ है, और नीचे हम एक ट्रेड भी देते हैं कि अगर इसके ऊपर स्टॉक जाता है या निफ्टी जाता है तो वी शुड बाय। उसमें स्टॉप लॉस भी दिया जाता है, बेंचमार्क का एक व्यू दे देते हैं, साथ में एक बैंक निफ्टी का भी हम व्यू दे देते हैं इसके अंदर, राइट, कि बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। उसके साथ साथ निफ्टी का सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, FII-DI's डेटा। अब देखो FII-DI's डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हो, जो लास्ट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट की रैली मार्केट में देखने को मिली है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ FIIs, राइट, बिकॉज they are continuously buying, right। So stock is continuously going up, right। So ये हमारा basically ये पूरा डेटा है जो हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं, और उसमें देखिए हम लोग कॉल्स में रिपोर्ट्स में हम साथ में वो भी देते हैं, कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी देते हैं, तो रिकमेंडेशन भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एंड तो ये डेटा, ये रिपोर्ट सुबह सुबह मिल जाती है आपको, ठीक है ना। हम 8:30 8 बजे तक भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग एक मार्केट व्यू बनाते हैं जिसमें स्टॉक्स की न्यूज एंड ऑल, वो मार्केट व्यू में हम सारा स्टॉक की न्यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज क्या है, वो इस रिपोर्ट में हम कवर कर देते हैं। उसके बाद इवेंट बेस्ड पोर्टफोलियो होता है हमारा, जो जितने भी इवेंट होते हैं उसमें हम एक पोर्टफोलियो क्लाइंट्स को बना के देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज देखिए टेक्नो फंडा एंड फंडामेंटल रिपोर्ट। टेक्नो फंडा हम एवरी वीक एक रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसका हम लोग बेसिकली क्या है, टेक्नो फंडा, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मिक्स करके देते हैं। इसका हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट्स 7 से 8% का होता है, और टाइम फ्रेम इसमें 1 महीने का लेके चलते हैं। ये हम एवरी वीक एक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो महीने में हम 4 रिपोर्ट देते हैं, साथ में हम फंडामेंटल रिपोर्ट्स बना के देते हैं, जो कि महीने में हम 2 फंडामेंटल्स रिपोर्ट्स अभी बना के दे रहे हैं आप लोगों को, जिसका टारगेट हमारा 30% का होता है एटलीस्ट। और
it's a purely based on the fundamentals, right? It's purely based on the fundamental, वो fundamental base पे होता है। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स हम लोग बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, और ये हमारा कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि अगर हम टेक्नो फंडा दे रहे हैं तो किस रिटर्न के साथ देते हैं, फंडामेंटल रिपोर्ट्स देते हैं तो किस रिटर्न के साथ देते हैं, या इंट्राडे कॉल या हमारा जो पोजिशनल टेक्निकल कॉल जाता है उसमें भी हमने ये मेंशन किया हुआ है कि हम डिलीवरी कॉल्स देते हैं या इंट्राडे कॉल्स देते हैं, तो क्या हमारा प्रोस्पेक्ट्स रहता है, राइट? सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों की बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगी, तो आई वुड लव टू गिव यू आंसर। Wait, I'm just checking the question. समृद्धि शर्मा, राइट? उनका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्स ट्रेंड, राइट? सी समृद्धि जी, रिवर्स ट्रेंड मीन्स व्हेन स्टॉक, देखिए बेसिकली स्टॉक में दो तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। बट जब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो मैंने जैसे आपको अप ट्रेंड की डेफिनेशन बताई कि स्टॉक इज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, राइट? जब स्टॉक कॉन्टिन्यूसली हायर बॉटम हायर टॉप फॉर्मेशन कर रहा होता है तो इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। बट स्टॉक जब वो फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, अंडरस्टूड, जब वो फॉर्मेशन को ब्रेक करता है और वो फॉर्मेशन रिवर्स की तरफ वो अपना हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को ब्रेक करके लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। मैं एग्जांपल्स के लिए समझाता हूँ। एक 100 रुपीज का स्टॉक है, विल टेक ए वन एग्जांपल। 100 रुपीज का स्टॉक है, वो चल के कॉन्टिन्यूसली 200 रुपए आ गया है, राइट? और उसका प्रीवियस बॉटम था 190 के आसपास, और स्टॉक 200 रुपए का हाई बना दिया। अब स्टॉक ने नीचे आना शुरू कर दिया। स्टॉक ने क्या करा, 200 रुपए से नीचे आया स्टॉक and it's went down to 180 rupees, right? And again stock went up to 190 rupees, ऊपर गया है, लेकिन उसने जो 200 वाला जो टॉप बनाया हुआ है ना, वो ब्रेक नहीं किया, और अगेन 190 से स्टॉक ने टूटना शुरू कर दिया एंड इट्स अगेन केम डाउन टू 175। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रेंड, कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा था और वो डाउन ट्रेंड होना शुरू हो गया, राइट? सो दिस इज ए ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली, कि हमें उस टाइम पे देखना चाहिए कि हमें उस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सुरेंद्र कुमार जी, हाउ टू नो द व्हेन द ट्रेंड विल चेंज? यस सर, मेरे ख्याल से अभी सेम ही क्वेश्चन था जो समृद्धि जी ने पूछा कि कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ट्रेंड का रिवर्सल कैसे होता है। सो अगेन आई वुड से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आई होप आपका भी क्वेश्चन इससे क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में शिफ्टिंग कैसे होती है, राइट? एक स्टॉक कॉन्टिन्यूसली अपने अप ट्रेंड के साथ चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम वो फॉर्मेशन कर रहा है, वो अप ट्रेंड है, बट उस फॉर्मेशन को जहां वो ब्रेक करना शुरू कर देता है, जो मैंने अभी एग्जांपल के साथ बताया आपको कि वो अपना टॉप क्या प्रीवियस टॉप बॉटम को तोड़ रहा है और प्रीवियस टॉप क्रॉस नहीं कर पा रहा है, दिस इज ए ट्रेंड रिवर्सल साइन, राइट? एंड थर्ड क्वेश्चन, again this guy is from Mr. Kumar ji, please let me know the draw trend line when we have to which, एक मिनट, आपका पूरा क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है, let me check, एक मिनट। अच्छा, प्लीज लेट मी नो द ड्रॉ ट्रेंड लाइन वी हैव टू टेक विच हाई एंड विच लो, राइट? सर देखिए, हम हमेशा स्टॉक कोई भी चैनल में ट्रेड कर रहा होता है या कोई भी एक साइडवेज ट्रेंड में चेंज कर रहा होता है, जो हमें हमेशा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए सर, ट्रेंड लाइन एक एडजस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज तो ये, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड लाइन को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ट्रेंड लाइन इज ऑलवेज एडजस्टेबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमें टॉप से टॉप को मैच करना होता है और बॉटम से बॉटम को मैच करना होता है। अगर कोई स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए पे टॉप बनाया है, जो भी टॉप से टॉप प्रीवियस जो टॉप्स होंगे वो टॉप को हमें मैच करना होगा, उस टॉप को हमें ड्रॉ करना होगा,
और मैं आपको उसे मैं फैल्कन्स के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। वो मुझे एग्जांपल्स देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर वो देखते हैं। सी सर ये देखिए, दिस एरिया इज ए, मैं ये आईसीआईसी बैंक है, कुछ भी हम देख सकते हैं। ये देखिए आईसीआईसी बैंक का है। आप कह रहे हैं कि कैसे ब्रेक, मैं आपको एक मिनट, आप लोगों आई होप ये चार्ट दिख रहा होगा सबको। चलिए सेशन 12 बजे खत्म हो जाएगा, या जब तक चला सकते हैं चला सकते हैं। एक मिनट सर, देखिए ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, राइट। तो स्टॉक, अब मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कोई सा भी, ये देखिए ये एक चैनल है, हमने ये इसके हाई से हमने ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, इसके हाई से हाई मैच किया है। देखिए ये देखिए स्लोप लाइन दिख रहा हुआ है। सर ये देखिए इस हाई से हाई को मैच करेंगे, ये दिस इज आवर ट्रेंड लाइन सर, दिस इज आवर ट्रेंड लाइन सर। ये देखिए इस हाई से हाई को मैच करना है, और देखिए ये, अब ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पर आया, इसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स बोलते हैं। देखिए जब इसने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक कॉन्टिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और जब मैंने इस हाई से हाई को मिलाया, और यहाँ पर देखिए इस ग्रीन कैंडल्स पे ब्रेकआउट आया, और इस ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट्स आने के बाद स्टॉक देखिए कॉन्टिन्यूसली इट्स गोइंग अप, मतलब 10 to 15% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया, ठीक है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट। सो हमें ये लेके चलना है कि ट्रेंड लाइन हमें हाई से हाई को मैच करना है। ये देखिए सर, ये है। अगर मैं लोअर साइड पे भी देखूंगा, अगर देखिए आपको बॉटम से बॉटम भी हम मैच करते हैं, ये देखिए, सॉरी मेरी ट्रेंड लाइन थोड़ी सी गलत खींच गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अगर आप इससे मैच करेंगे, ये देखिए ये मैच करा, थोड़ा ट्रेंड लाइन थोड़ा, ये आप इससे इसे मैच करेंगे, ये यहाँ कहीं ना कहीं कहीं कनेक्ट होगी, थोड़ा इसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो अदरवाइज ये देखिए आपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन देखी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो इट विल टेल यू कि आपको हाई से हाई मैच करना है और लो से लो मैच करना है। ऑप्शन ट्रेड, पवन जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन ट्रेड। सर ऑप्शन ट्रेड यू आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक कॉल पुट ऑप्शंस, या ऑप्शन ट्रेड। सर देखिए मेरे को जो समझ में आ रहा है आपके क्वेश्चन से कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन ट्रेड, या तो आप कॉल पुट की बात कर रहे हैं। सो कॉल पुट में सर आई वुड से कि सर दिस सेशन इज नॉट अबाउट द कॉल पुट, right? We'll take another session, right? This is about the technical, कि हम technical tools को कैसे use कर सकते हैं। But yes, when we talk about the option, अगर आपको ये ऑप्शंस में ही, मतलब अब मैं जैसे आपको मैंने दिखाया कि जब ये रेंज ब्रेक हो, आईसीआईसी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट्स आया है, तो उस ब्रेकआउट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए भी। तो सर देखिए जब अगर अब हमारा बेंचमार्क चलेगा, हमारा अंडरलाइंग एसेट चलेगा, तो उसमें हमारा ऑप्शन भी चलेगा, राइट। सो टेक्निकल्स के थ्रू हम ऑप्शन ट्रेड्स में भी ले सकते हैं। अगर हमें पता है कि आईसीआईसी बैंक का ब्रेकआउट है और आईसीआईसी बैंक यहाँ से चल सकता है, तो डेफिनेटली हम वहां से कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, वट एवर इट इज, राइट सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस, और बात रही कॉल पुट सेशन की, तो हम डेफिनेटली विल टेक अनदर सेशन फॉर द कॉल पुट। And another question is just sir, I bought, ये पवन कुमार सिंगल जी से क्वेश्चन आया है, I bought Axis 31st December 620 call. Can you suggest me hike can be seen in this? Okay, आप एक्सिस बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, आपने दिसंबर की कॉल ले रखी है 620 की। सर देखिए अभी हमने जो हमने बात करी, जिसकी हम बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। देखिए ये एरिया, ये स्टॉक पिछले पिछले एक महीने से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप दिख रहा है आपको ये एरिया। अब देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल ये है, अंडरस्टूड। ये देखिए
आप देखिए स्टॉक कल जो रिवर्स हुआ है अपने सपोर्ट लेवल से ही रिवर्स हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट यू, देखिए सर स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ए रेंज, ये देखिए ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। अब लोअर रेंज से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, 590 का सपोर्ट है, अपर साइड में सर 640 के आसपास स्टॉक का रेजिस्टेंस है। तो अब जब लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहा है, ऑब्वियसली स्टॉक यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आई वुड से कि यू कैन होल्ड ये 620, 25, 30, ये एक दो दिन के अंदर स्टॉक आ जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड होल्ड योर कॉल ऑप्शंस, right? So I hope you there are a lot of questions, right? There are a number of questions when and how we can get the reports. सर देखिए रिपोर्ट्स के लिए बेसिकली हम लोग अपनी रिसर्च जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वी आर ऑन व्हाट्सएप, सो एवरी रिपोर्ट्स इज वी आर गिविंग ऑन व्हाट्सएप नंबर, राइट? सो और उसके लिए हमारे पास एक टीम है जो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उन्हें अपना डेटा दे सकते हैं। अगर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, आप वहाँ नंबर ऐड करा सकते हैं, वहां पर आपको वो सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, राइट? एंड आई शेयर विद नंबर ऑल्सो कि कौन सा नंबर है वो कौन सा नहीं है। सी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस when and how we can get this report. I think I have given this answer. What is the breakout of ICICI Bank in an uptrend? How we can identify? सर ICICI बैंक का देखिए ब्रेकआउट पहले भी बना था। सी ये ICICI बैंक का डेली चार्ट है सर, आप ये देखिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से, राइट? ये दिस एरिया वाज द रेजिस्टेंस, राइट? ये देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखिए आप सबसे क्लियर ये देखिए ना सर, आप ICICI बैंक के बारे में पूछ रहे, देखिए ICICI बैंक इज अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल बॉटम। सी फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम, सी दिस बॉटम, और ये ब्रेकआउट लेवल है। अब ब्रेकआउट लेवल का मतलब ये होता है कि जब इस बॉटम का ब्रेकआउट, ये देखिए 390 का ये ब्रेकआउट लेवल था, और बॉटम कहाँ है सर? 280, मतलब 280 एंड 390, इट्स कम अराउंड 110 रुपीज। अब 390 में 110 रुपीज ऐड कर दीजिए, इट्स कम अराउंड 500। इसका 500 का टारगेट था जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, अंडरस्टूड? ये 500 रुपए का टारगेट हो चुका है, बट मैंने अगेन आई वुड से डबल बॉटम डबल टॉप ये सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, ना कि खाली आपको टारगेट देते हैं। माइट भी 600 रुपए भी जा सकता है, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो हो चुका है। माइट बी स्टॉक कैन टेक सम कंसोलिडेशन एट करंट लेवल, देन अगेन ये फिर निकल जाएगा स्टॉक। तो एज ऑफ नाउ अभी 530 550 स्टॉक का बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इसके ऊपर ही इसका फ्रेश मूव आएगा, राइट? So any other question? There are a lot of questions. Where is the breakout of ICICI Bank? I have been associated with Delhi last 2 months. I have not received the reports. Sir, again, I would say कि this is just a moment. ये नंबर यही है सर, this is our phone number basically. Just आगे एक मिनट, ये तो इन्हें दिख रहा होगा ना सर? मेरे ख्याल से आपको जो स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर भी है, ये हमारी डिजिटल टीम्स के नंबर्स हैं। आपको किसी तरीके की रिपोर्ट्स या रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स है, आप इन्हें फोन करके बता सकते हैं और आपको ये रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी सर, राइट? समहाउ हम लोग व्हाट्सएप पे भी देते हैं, मेल के थ्रू भी जो रिपोर्ट्स देते हैं, राइट? सो मोबाइल नंबर इज 9650901058। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। सो उससे वो बहुत क्लियर हो जाता है। आप ये नंबर नोट कर लीजिए और इसके थ्रू आप रिसर्च में बात कर सकते हैं, राइट? अनदर क्वेश्चन इज सुरेंद्र जी कहते हैं सर जी प्लीज टेक वन सेशन ऑफ ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न्स। बिल्कुल सर, हम नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली हम लोग रखेंगे अगेन पैटर्न्स पे, बिकॉज दिस वाज अ वेरी बेसिक सेमिनार, दिस वाज अ वेरी बेसिक वेबिनार जो कि हम लोगों ने अभी रखा है। तो डेफिनेटली फर्दर हम लोग इसके लिए अनदर सेशन के लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं और जरूर हम करेंगे। Are you saying that we are still Canara Bank bought at 130? Yes, I think. And there are a lot of please guide on
Sir, would you please take another guide on Canara Bank? सर कैनरा बैंक के लिए सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट मोमेंट मैं देख लेता हूँ कैनरा बैंक। यस सो सर कैनरा बैंक के लिए आई वुड सजेस्ट यू अभी एज ऑफ नाउ इट सीम्स ऑन ए कंसोल। देखिए एक बहुत बड़े रनअप के बाद देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, डाउन ट्रेंड के बाद अब स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड, अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन मोड में है। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर ये शॉर्ट टर्म में 135 137 आता है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, राइट। ये इतना पॉजिटिव स्टॉक नहीं है एंड अंटिल अनलेस ऑल्दो गवर्नमेंट काफी चीजें कर रही है पीएसयू बैंक्स के लिए, काफी डिसइन्वेस्टमेंट और काफी चीजें हैं लाइंड अप में पीएसयू बैंक्स के लिए, तो बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू इसका ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है और इतना प्रेफरेबल नहीं है, तो अभी ये 120-22 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये 135 के आसपास आता है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। I think this is all from our side. I hope you like this session and further definitely कुछ लोगों के queries हैं और भी, so हम सारी queries इस session में नहीं कर सकते। आपको नंबर दे दिया गया है, आप उस नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो, right? And और सेशन की जो बात हुई है definitely we'll take another session for the advanced technical modules and thank you very much. Thanks all.